جی ٹھیک ہے، اب بول چال کے ذریعے تھوڑا سا اس کا اجرا دیکھ لیتے ہیں. کچھ ایک دو الفاظ ہیں آئینہ اور ہاں. اس میں ایک اور لفظ ہے جو آپ سیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ، جو سوال کرنے کے لیے عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ہے آئینہ. آئینہ کا مطلب ہے کہاں، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ویئر. ویئر آر یو، مثال کے طور پہ اگر میں نے کہنا ہو آپ کہاں ہیں، تو میں کہوں گا آئینہ. اور آپ کے لیے کیا ہوتا ہے انت. آئینہ انت، آپ کہاں ہیں. اور آپ پھر اس کو بتا سکتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں. اور یہاں پر ایک اور ناؤن جو ہم نے بول چال کے لیے استعمال کرنا ہے وہ کیا، الباب. باب کا مطلب آپ جانتے ہیں ہوتا ہے دروازہ، جیسے ہم کہتے ہیں باب جبریل یا باب فہد. حرم میں جو آپ سے جو لوگ گئے ہیں، باب فہد، باب عبد العزیز وغیرہ. اسی طرح جو ہے وہ باب کا استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے باہر. تو آئینہ کا مطلب کیا ہے، کہاں. تو سوال میں اگر میں آپ سے کرتا ہوں کہ آئینہ انت، آپ کہاں ہیں، آپ جب آپ نے اندا کا استعمال، اصل میں اندا کے لفظ کو استعمال کرنے کے لیے انا عند الباب، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں دروازے کے پاس ہوں. انا عند کوئی اور لفظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کی ووکیبلری میں ہو نا. انا عند الکرسی کی مثال، کرسی کے پاس. یا میں کسی اور شخص کے پاس ہوں، اس کا نام بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے عربک ورڈ یوز کرنا ہے تو آف کورس آپ کو ووکیبلری میں آپ کے وہ لفظ ہونا چاہیے. اسی طرح اگلا لفظ کیا ہے، مم معاکا، آپ کے ساتھ کون ہے، مم معاکا. اب اس کا بہترین جواب کیا ہے، معی اللہ، میرے ساتھ اللہ ہے. لیکن آپ ساتھ میں کوئی اور بھی جواب دے سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ساتھی ہے، کوئی دوست ہے جو واقعی اس وقت فزیکلی پریزنٹ ہو. ماں کا جو لفظ ہے نا، اصل میں یہ ساتھ ہونا، فزیکل پریزنس اس سے مراد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور پھر اس میں یہ پہلو بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مدد بھی کرنے والے ہیں، اور مشکل میں ساتھ دینے والے بھی. من بینی و بینک، کیا مطلب ہوگا اس کا. من کا مطلب، من کا استعمال ہم پہلے لیکچر سے کرتے آ رہے ہیں. من کا مطلب کیا ہے، کون اور وہ. کون؟ بینی میرے درمیان، و بینک اور آپ کے درمیان، میرے اور آپ کے درمیان کون ہے. بینی و بینک عبد اللہ، مثال پہ عبد اللہ ایک نام لے لیا، آپ کہتے ہیں بینی و بینک. جب ہم ایکچولی اس کو پڑھاتے ہیں کلاس روم سیشن میں، تو پھر اسٹوڈنٹس اس طرح روز اینڈ کالمس کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان سے یہ سوال میں اس طرح سے کرتا ہوں تو وہ اپنے آگے والے کا نام لے دیتے ہیں یا اپنے پیچھے والے کا نام لے دیتے ہیں، اس طرح سے. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ سے کروں گی سوال، تھوڑی سی اس کی مشق کر لیں کوئکلی. جی ابراہیم، آئینہ انت، بتائیے آئینہ انت یا ابراہیم. معي الله. نہیں، آپ تو سوال گندم جواب چنا کر دیا. سوال یہ تھا کہ آپ کہاں ہیں، اور آپ نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے. دیکھیے سوال کو سمجھے، آئینہ انت، آپ کہاں ہیں. آپ کہیں گے میں کے لیے کیا ہوتا ہے، انا. أنا ہاں عند الله، عند الباب. انا جی انا عند الباب. عند اللہ جو ہے وہ ابھی معاملہ نہیں پوچھا ہے. جی انا عند الباب. جی آئینہ انت یا عبد الرحمن. أين أنت يا أنا عند الكرسي. انا عند الکرسی، ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. آئینہ انت یا غلام فاطمہ. انا انا ان دا جی آپ باپ بھی کہہ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، باپ کو دوبارہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی آپ کے پاس انا ووکیبلری میں نہیں. انا ان الباب. انا عند الباب. یعنی آئینہ انت، آئینہ انت یا قرۃ العین. انا عند الباب. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا. انا عند الباب کا کیا مطلب ہے، میں دروازے کے پاس. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں. جی آگے چلتے ہیں. دانیال اسلم، آپ سن رہے ہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں. چلے فرح آپ بتائیے، مم معک، مم معکی. معي الله. معی اللہ، ماشاء اللہ بہت خوب. ٹھیک ہے جی. مم معک یا احمد. احمد AB 20. جی معي الله. معی اللہ، آپ بالکل ٹھیک ہے، معی اللہ، میرے ساتھ اللہ ہے. اور اگلا سوال ہمارا کیا ہے. سر تھوڑی اگر یہاں پہ بولنا ہو، یہ تو ہو گیا نا معي اللہ، جی تو جی اگر جی. ہم کہیں کہ استاد ہیں یا کوئی اور تو کیسے بولیں گے معي یا معی الاستاذ، اور میرے استاد ہیں تو الاستاد؟ استاد ہی ہیں، الاستاذ کہہ دیں. ہاں معی الاستاذ، معی ٹھیک استاد ہے، ان بھی آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن چونکہ آپ نے خاص استاذ کی بات کرنی ہے، معی الف لام ٹھیک. لگا کے آپ کہتے ہیں. فی الحال خاص اور عام چونکہ آپ نے نہیں پڑھا، اس لیے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے.
آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ استادی، میرے استاد، میں اپنے استاد کے ساتھ ہوں. معیہ صدیقی، میں اپنے دوست کے ساتھ ہوں، اپنی فرینڈ کے ساتھ ہوں. خلیلی، صدیقی، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. ہاں آپ اپنی والدہ صاحبہ کیا دیں، معیہ امی، میں اپنی ماں کے ساتھ ہوں. یہ امن اور ابن جو ہے نا، یہ ہمارا اگلے سیشن میں ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے، تو وہاں پر ہم اس کو جو ہے ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. جی مم بینی و بینکا، مبارکہ آپ بتائیے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. مم بینی و بینکا، اب آپ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں. بینی و بینا کا عبداللہ. جی آپ کوئی اور اپنی کسی خاتون کا نام لے دیں، ضروری نہیں کہ آپ کسی کوئی نام لیں. جی مم بینی و بینکی، دوبارہ بینا بتائیے. و بینی کی نہیں الماریہ. بینی، ہاں بینی و بینک، بینی و بینکا. آپ یہ بات ہے کہ بینی و بینکا امی. ماریا، ٹھیک ہے ماریا، امی امی، ٹھیک ہے بالکل صحیح. یہ ہم نے تھوڑی سی مشق کر لی اس کی، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا. قرآن کریم کی ایگزامپل دیکھیں گے تو آپ کو اور اچھی طرح اس سے پیدا ہو جائے گا. یہ آپ نے نشید کل میں شیئر نہیں کر سکا گروپ پہ، کیونکہ میرے پر رائٹس نہیں تھے. میں انشاءاللہ اس کو نشید شیئر کرتا ہوں، آج کرواتا ہوں تاکہ آپ یہ سنیں اس کو. بڑی خوبصورت نشید ہے یہ. جی اشاروں کے ذریعے سے ہم نے مشق کر لی، 6 طریقوں سے کر لی. آپس میں مشق ابھی آپ یہاں پر نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہم نے اس سبق میں 12 نئے الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن کریم میں 1213 مرتبہ آئے ہیں. اب ہم ان کو تلاش کرتے ہیں، قرآنی مثالوں سے اجرا کرتے ہیں اس کا، اور اس کو میں باری باری سے پوچھتا ہوں وہ جواب دے. چلیں ابراہیم آپ سے شروع کرتے ہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اس میں جو ہمارے سبق کے الفاظ ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ریڈ میں آلریڈی. ترجمہ جو کرنا ہے میں یہاں سے شروع کر دیتا ہوں آپ کا. ثم پھر لآتینہم، میں ضرور بے ضرور آؤں گا ان کے پاس، من سے، بین ایدیہم، اس کا ترجمہ کریں آپ پہلے ابراہیم. میرے نہیں دونوں ذرا ہاتھوں کے غور سے درمیان. ضمیر کو پہچان لیے. بین ایدیہم ہے، ہم آخر میں ایم ان کی ضمیر. جی ان کے ان کے، دونوں، ان کے ہاتھوں کے درمیان. نہیں آپ لفظی ترجمہ نہیں کریں. ہاتھوں کے درمیان کا ایکچولی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں ان کے درمیان، ان کے سامنے، ان کے ہاں ان سامنے. کے سامنے سے. پھر میں ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے. ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے، پیچھے سے. ان کے پیچھے سے. ٹھیک ہے جی. جی. وعن ایمانہم، یہ ایمان کس کی جمع ہے؟ میں نے آپ سے لیکچر کے دوران بھی بتایا تھا، یمین کی جمع ہے. ٹھیک ہے. وعن ایمانہم، یمین، یمین دائیں. کسے کہتے ہیں؟ جی وہ دائیں 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 ہاں دائیں جی طرف ٹھیک سے. ہے. اور ان کے وان، پورا، ہاں اور ان کے دائیں، ضمیر لگا نا ساتھ میں، ضمیر ہم کی ہے تو آپ نے، اور ان کے اور دائیں، دائیں سے یا دائیں طرف سے. وعن شمائلہم، شمائل کس کی جمع ہے؟ شمائل ان جمع کے ہے بائیں، شمال ان کی، اور ان کے بائیں بائیں. سے. اور یہ کس کے الفاظ کوٹ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر؟ یہ ابلیس کے الفاظ ہیں. جب ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس نے انکار کر دیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، اور اس نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو اور کہا کہ میں سیدھے رستے پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا. یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سیدھے رستے پر، صراط مستقیم جو ہے اس پر میں گھات لگا کے بیٹھوں گا، اور میں ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا. یعنی تقریباً ہر ڈائریکشن کا اس نے ذکر کیا سوائے 2 ڈائریکشن کے جو ہم نے پڑھی ہیں. 6 میں سے 2 جو ہیں وہ اس نے مس کر دی ہیں، جس سے مفسرین نے اور علماء نے یہ نقطہ نکالا کہ 2 ڈائریکشن ایسی ہیں جس کے ذریعے سے شیطان کے حملے سے بچا جا سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک اوپر کا راستہ یعنی دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے، اور ایک نیچے کا راستہ یعنی سجدہ سر بسجود ہو کے اللہ کے سامنے جھک کے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے ابلیس کے حملے سے، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر ہی گھات لگا کے بیٹھتا ہے. یعنی انسان جو سیدھے راستے پر چلنے لگتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ڈگمگا دے، اور جس طرح کا انسان ہوتا ہے اس طرح کا اس کا شیطان ہوتا ہے. کہتے ہیں مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مولوی کو کیسے بہکانا ہے اور کس شخص کو کیسے بہکانا ہے. یعنی اس کا ہزاروں سالوں کا تجربہ ہے انسانوں کو بہکانے کا، تو وہ اس تجربے کو استعمال کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پھر اس کو، شیطان کو کیا فرمایا؟ جہاں جہاں بھی 4 جگہ پہ اس کا ذکر ہے، کہا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، میرے خاص بندے ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دیں. یعنی کہ ہم خلوص کے ساتھ اور پوری سنسیرٹی کے ساتھ دین پر چلنے کی کوشش کریں. دین کے معاملے کے اندر کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہو جانا، یا یہ کہنا کہ میں یہ تو مانوں گا اور یہ نہیں مانوں گا، تو یہ منافقت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. منافقین کیا کرتے تھے کہ جزوی پیروی کرتے تھے، کامل پیروی نہیں کرتے تھے دین کی. اور یہی حال بنی اسرائیل کا بھی تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کے نقشے قدم پہ چلیں کہ جو ہمیں سوٹ کرے وہ اتنی شریعت تو ہم فالو کر لیں،
اور جو सूट ना करे हम कहें कि यार ये मुश्किल है, ये मैं नहीं मानता। हाँ, उसमें निदामत और शर्मिंदगी होनी चाहिए कि मैं 100% अमल नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह का हुक्म जो है वो उसको सामने में सरे तस्लीम खम कर दूं। तो इससे अल्लाह ताला, और अल्लाह से मांगू कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं पूरी तरह 100% आपकी इताअत कर सकूं। जी आगे चलते हैं। मुबारक आपने ये आज सर सूरह ये के दुआ भी है ना, पहले ये दुआ बड़ी मुश्किल लगती थी, लेकिन जब से ये मैंने पढ़ा है ना तो माशाल्लाह मुझे जुबानी अच्छा भी जी याद हो गई। जी अल्लाह बताइए। माफिज हाँ फैनी जी ये बिल्कुल बिल्कुल, इस दुआ का शायद मैंने अगली स्लाइड्स मिन में हल्फी। देखते जी जी, हैं ये अब पहले बड़ी आसानी स्लाइड हो गई। का। जी जी बहुत आसानी हो गई है, आपने बड़ा अच्छा कि उसका जिक्र कर दिया। उस दुआ के अल्फाज देख लेते हैं, शायद नेक्स्ट लेसन में है, मुझे याद नहीं आ रहा किसी स्लाइड में है। ये आफियत की दुआ है, सुबह शाम के अज़कार में से है, और आप जी बिल्कुल सही बिल्कुल। फरमा रही हैं, उसमें इन 6 डायरेक्शंस का जिक्र है आता है, उसको हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। जी अगली अल्लाह आयत का तर्जुमा माफिज। आप कीजिए, मुबारक आप ही कीजिए। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाहुम उनके लिए, अजरुहुम उनके लिए अजर है, इन द नहीं रुकिए पास। रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए। आपने ना जब लफ्ज़ी तर्जुमा करना है, लहुम उनके लिए आप तर्जुमा कर चुकी हैं ना, तो अब जी, आप यहाँ पर उनके लिए नहीं लाएंगी, आप और लहुम को भूल जाएं, सिर्फ अजरुहुम का तर्जुमा करें, आइसोलेट कर। अजरुहुम, अजरुहुम उनके लिए अजर है। नहीं उनके लिए नहीं, के लिए होता तो लहुम होता ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी तर्जुमा पढ़ा हुआ है, मुझे अंदाजा हो रहा है, इसलिए आपने फौरन लहुम का तर्जुमा किया माशाल्लाह। अजरुहुम, देखिए अजरु गर्दान करें जरा, अजरुहु और अजरुहुम, अजरुहु का मतलब क्या होगा जी? अजर अजर नहीं अजरुहु, उनके लिए उसके लिए अजर। उसे का जो उसके लिए अजर। देखिए किताबु का मतलब क्या होता है, ये दीन किताब दीनुहु का मतलब करें, दीनुहु उनका दीन, उसका दीन, और उसका दीनुहुम दीन, उन उनका सबका दीन, दीन, अजरुहु उसका अजर, और अजरुहुम उनका अजर। उनका अजर। जी इसका मतलब क्या होगा, उनका अजर। बाकी सारे लोग भी इससे भी अपनी गलती की इस्लाह कर लें अगर आप कर रहे हैं। लहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर, इंदा का मतलब क्या होगा, पास, पास, रब्बिहिम। उनके रब के, हाँ अब देखिए जब आप एक लफ्ज का तर्जुमा कर देंगे ना, तो आप दोबारा उनके उसको रब, हाँ उनका उनके रब, रब, बिल्कुल जी बिल्कुल उनका उनका रब। रब। हम बा मुहावरा तर्जुमा बाद में बनाएंगे, मैं आप ही से कहूंगा कि आप बनाएं, फिलहाल लफ्जी करें। लहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर या उन सब का अजर, इंदा पास, रब्बिहिम उनका रब, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, जी, वला और ना, और नहीं, खौफुन का मतलब ये उर्दू का लफ्ज है, मैंने पर्पल में खौफ, हाईलाइट किया, खौफ, अलैहिम उनके ऊपर। आपको आता है तर्जुमा, लेकिन बाकियों के लिए बता रहा हूँ। वला का मतलब क्या होगा, फिर आ गया, और ना और नहीं, हम का मतलब कीजिए। उनके अब ये लिए। हम अलहदा से लिखा हुआ है, नहीं रुकिए, ये लहुम नहीं है, देखिए लहुम और ये वला अलहदा है और हम अलहदा है। हम जब अलहदा लिखा होगा तो ये हमारा कौन सा सबक है, ये वो ज़मीर मुनफसिला है। मुनफसिल है, वेरी गुड। हुआ, हुमा, माँ, हम। हम, तर्जुमा करें, हुआ का मतलब क्या होता है, वो एक, और हुमा, वो दो, वो सब और हम, वो वो सब, सब। तो यहाँ पर हम का मतलब क्या है, वो सब। वला और नहीं, हम वो सब, यहज़नून वो गमगीन होंगे। गमगीन होंगे। फिर ये तो ये जन्नतियों का जिक्र किया जा रहा है कि उनका अजर उनके रब के पास है, यानी महफूज है उनका अजर, और ना तो उन पर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे, नहीं ना कोई उन्हें माजी की कोई खौफ और ना कोई मुस्तकबिल का कोई अंदेशा। ये अगली आयत की तरफ चलते हैं। अब्दुल रहमान आप ट्राई करेंगे, अब्दुल रहमान जी जी। सर। व अकीमू और कायम करो, अस्सलाता नमाज, नमाज, व आतू और अदा करो, अज़्ज़काता ज़कात, ज़कात, वर्कऊ और रकू करो, मा क्या मतलब है, मा का हमारे आज का सबक का ये। अब इब्राहिम साथ साथ, मा का मतलब बमा अहलो अयाल से आपने याद, ठीक है, मा साथ, और राकिईन, ये राकिईन को जरा पहचानने, ये अब्दुल रहमान आप ही ने पहचाना, वाहिद है, तस्निया है, जमा है, राकिईना ये जमा है सर। जमा है, कैसे पता चला आपको, राकी ईना ईना, लिखा है ना। आखिर में ईना, ईना को हटा दे, वाहिद क्या बचेगा इसका, राकी रुकू, नहीं नहीं, आप राकिईना में से ईना को हटाएं, बाकी क्या बचा, राकी, राकिया राकी राकिया, और राकिया, या राकिउन भी इसको हम कह सकते हैं। राकिउन एक रुकू करने वाला, और राकिईन ज्यादा रुकू करने वाला। ज्यादा रुकू करने वाले। अब तो आयत को पूरा तर्जुमा आप कर सकते हैं, इसका क्या तर्जुमा बनेगा इस आयत का, जी, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और और रुकू करो, रुकू कर दो करो रुकू करने वालों के साथ। रुकू करने वालों के साथ, मशहूर आयत है।
गालिबन आप इस्लामियात में भी इसको पढ़ा हो। ठीक है जी, माशाल्लाह जी। आगे चलते हैं। हादिया बशीर आप ट्राई करेंगी अगली आयत। यस सर। जी, कुल कह दो, हुआ का मतलब करें। पहला हुआ सबक वो है हमारा, एक, वो एक अलकादिर, कादिर का मतलब क्या अलकादिर वो होता है? कादिर है, कादिर, ठीक है, कुदरत कादिर रखने वाला। अला ऊपर, अन ये पर के यबअसा वो उठाए या उठा ले या भेज दे, यहाँ पर आएगा अलैकुम तुम सबके ऊपर। अजाबन का मतलब क्या होगा? उर्दू का लफ्ज है अजाब अजाब। मिन से फौकिकुम, अब से, फौकिकुम हमारे आज के सबक का लफ्ज है। फौकी फौकिकुम से ऊपर, जी, कुम आप सब, फौक आप सबके, फौकिकुम आप सबके आप ऊपर, सबके ऊपर, हाँ। मिन फौकिकुम आप सबके ऊपर से, आउ या मिन से, तहती, तहती का तहती मतलब क्या होगा? नीचे, नीचे, अर्जुलिकुम आपके कदम, आपके पांव या कदम। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आप पूरी आज का तर्जमा देखिए तो क्या होगा? कह दो कि वो कादिर है, वो किस एक बात पे कादिर है, कादिर है? कि वो क्या करे? वो अजाब भेज दे तुम्हारे ऊपर, कहाँ से? ऊपर से या नीचे से। तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे कदमों के नीचे से। अगली आयत वो है जो बहुत मशहूर है, आयतुल कुर्सी की आयत है। कल एक स्टूडेंट ने इसकी तरफ इशारा भी किया था, और वो स्टूडेंट कौन थी वो बता दें। मारिया, आपने चले मारिया, आप इसको ट्राई करें। मन दल्लदी, मन कौन, जल्लदी जो, यशफाउ वो सिफारिश करे। इंदहू का तर्जमा करें आप। इंदहू करीब या पास, आप जमीर का तर्जमा करने में थोड़ी सी आप अभी उस एक गलती के कर, पास। उस एक के पास। लेकिन अगर सिर्फ इंदा होता तो पास होता, इंदा है तो उसके पास, बिल्कुल ठीक है। इल्ला मगर, बिइज़्नी ही, इज़न किसे कहते हैं? इजाजत को कहते हैं। इजाजत, मगर उसकी इजाजत से, इज़्नी ही के आखिर में फिर देखिए ही की जमीर आ रही है। इज़्नी ही उसकी इजाजत, उसकी उसकी इजाजत से। इजाजत। यालम को वो जानता है, माँ जो। अब देखिए यहाँ पर बैना लिखा हुआ सबको नजर आ रहा है, लेकिन आपने बैना के बाद देखना है कि अईदी तो नहीं है, ये यदई तो नहीं है। तो चूंकि बैना अईदीहिम है, तो अब ये लफ्ज दरमियान नहीं हो सकता। अब इस पूरे का तर्जमा आप करेंगी। इसका तर्जमा क्या? बैना उन सब अईदीहिम के दरमियान। नहीं, दरमियान नहीं। बैना अईदी का मतलब क्या होता है? हमने मशक भी की है इसकी। सामने। सामने, उन सामने दोनों के उन सामने। सबके सामने। वो जानता है जो उन सबके सामने है। वमा, और जो खल्फहम का तर्जमा कीजिए मारिया। और वमा और और हल्फहुम जो उन उन सबके सबके पीछे। पीछे। ठीक है जी। तो ये अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला की सिफात पे मुश्तमिल है आयतुल कुर्सी। और वो जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है, यानी जो उनके आगे आने वाला है और जो उनके पीछे गुजर चुका है। अल्लाह ताला सारे हालात से वाकिफ है। अगली आयत उसामा आप ट्राई कर लें। उसामा शम्स। जी, कुलिल्लाहु शहीदुम बैनी व बैनकुम, जी, कुल कह दो, अल्लाह कह दो अल्लाह शहीदुन गवाह है, बैनी मेरे जी दरमियान, मेरे व दरमियान। बैनकुम और आपके नहीं, आप दरमियान, लसीद ना करें, पहले लसीद ना करें। बैनी मेरे दरमियान, बैनी मेरे जी, दरमियान व बैनकुम और आपके दरमियान। और आपके दरमियान। अब आप कहेंगे कह दो कि अल्लाह गवाह है मेरे और आप सबके दरमियान। अब दरमियान को दो दफा जी दोहराने की जरूरत नहीं है, बाम मुहावरा नहीं है। कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे सर कौन ये से स्टूडेंट्स? अल्लाह जो है ये भी इसका भी ज़मीर के साथ होगा कि उस एक का नहीं, ये मैंने अल्लाह। वजाहत की थी कि लफ्ज अल्लाह के आखिर में जो हा होती है, ये जमीर नहीं होती। जमीर मुत्तसिल आपने अगर चेक करना हो ना कि है या नहीं, आप उसको हटा के देखें। आप लफ्ज अल्लाह के आखिर में से ये हु हटा दें, बाकी जो लफ्ज बचेगा, क्या वो कोई नाम रहेगा अल्लाह का? अलिफ लाम लाम नहीं सर। नहीं रहेगा ना, तो इसलिए जमीर नहीं। इसको आप इस तरह से चेक कर सकते। जी, जी जी। अगली टर्न है हमारे पास। कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक हमने ना मौका दिया हो। चले हमदा आयशा आप बताइए, आप तर्जुमा करेंगी। अल्लज़ीना, जी, अल्लज़ीना जो लोग, यहमिलूना वो उठाते हैं, यह उठाए हुए हैं। अल अर्शा, अर्श किसे कहते हैं? आसमान को। नहीं नहीं, अल्लाह का अर्श। अल्लाह का अर्श जो है, अर्श का मतलब अर्श ही कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली अर्श के लुग़वी माने होते हैं तख्त। जैसे आपने बादशाहों के तख्तों के बारे में सुना होगा, पुराने जमाने में बादशाहों के तख्त हुआ करते थे। तो अल्लाह का अर्श, यहाँ पर अर्श मुराद है। जो लोग उठाते हैं, ये उठाए हुए हैं, जो उठाए हुए हैं अर्श को। वमन, और जो, अब आप तर्जुमा कीजिए, हौलहू उस एक के इर्द गिर्द। उस एक के इर्द गिर्द।
यहाँ पर वो कौन सी चीज है, वो एक क्या चीज है जिसके इर्द गिर्द की बात हो रही है? इस आयत से आपको पता चल जाएगा, इस आयत में उसका जिक्र गुजरा है पहले इन अल्फाज में। हौलहू से पहले देखिए एक चीज कौन सी है और अल्लाह मुज़क्कर भी ताला। है। नहीं, यहाँ पर तो अल्लाह का जिक्र आ ही नहीं रहा है। देखिए क्या लफ्ज़ अल्लाह है यहाँ पर कहीं? अर्श। अर्श है, बिल्कुल। इसका मतलब है हौलहू, हू मुज़क्कर की ज़मीर है ना, वाहिद मुज़क्कर की बात हो रही है ना, तो ये अर्श की बात, जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द है, अर्श के इर्द गिर्द। और आप समझ सकते हैं कि अर्श को कौन किसने उठाया हुआ है और अर्श के इर्द गिर्द कौन है? फरिश्ते हैं। युसब्बिहूना, वो सब तस्बीह करते हैं। बिहम्दि रब्बिहिम, हम्द का मतलब क्या होता है? उर्दू का लफ्ज़ है करीब हम्द, तारीफ। करीब रब्बिहिम, आपने तर्जुमा करना है रब्बिहिम का, ये आपके सबक का लफ्ज़ है, पिछले इसबाक में से है। उन सब के रब के साथ। हाँ, नहीं साथ न लाए, अब उनका, उन सबका रब या उनका रब, ठीक है। अब जी वो तस्बीह करते हैं अपने रब की तारीफ के साथ। अब आप बाम मुहावरा में इस तरह कह सकते हैं, जो उठाते हैं अर्श को और उसके इर्द गिर्द हैं, वो तस्बीह करते हैं किसकी? अपने रब की, उसकी तारीफ के साथ। जी डॉक्टर मोहम्मद आमिर साहब, आप ट्राई करेंगे अगली आयत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आप रेडी हैं? सर इसमें कुछ ऐसे अल्फाज है जो मैंने पिछली क्लासेस मिस किए हैं, तो जी वो ठीक वाले है, अल्फाज हैं, चलें इसीलिए हम किसी और को मौका दे देते हैं, जज़ाकल्लाह। तो मसला नहीं। जुहैब हुसैन, आप ट्राई करेंगे। AG 2723। तो मैं ट्राई करूँ। अपना तारुफ करो, नाम बता दें। शाज़िया। जी ठीक है जी, आप करें। अलम क्या नहीं क्या नहीं यातिकुम, जी ठीक है, आपको आता है, आई बताइए। तुम सबके पास नबा जी ठीक, खबर जी अल्लज़ीना उन लोगों की मिन क़ब्लिकुम जो तुम सबसे पहले माशा, कौम नूह और आद व समूद और समूद जी वल्लज़ीना और उन लोगों की मिन बादिहिम जो इनके बाद आए, आप सबके बाद आए, जी, उन सब के बाद आए। उन सबके बाद। हाँ, हिम है, कौम नहीं है। ठीक है जी, माशाल्लाह, जी बहुत जी जी। आपने रवानी का तर्जमा किया है, जिससे ये पता चल रहा है कि आप तर्जमा पहले पढ़ रही हैं या पढ़ चुकी हैं जी कुरान थोड़ा करीम का। बहुत तर्जमा पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, माशाल्लाह। तो आपको इस कोर्स से कितने फीसद फायदा हो रहा है? इससे बहुत ज्यादा, क्योंकि अब ज्यादा समझ आ रही है। ठीक, कॉन्सेप्ट अब ज्यादा क्लियर हो गया आपके। जी 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 ठीक है जी। जी, माशाल्लाह। अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि आपको मजीद इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। जी, हादा दिक्र मन माई व दिक्र मन क़ब्ली, इसको ट्राई कर लें। कुर्रतुल आइन आप कर लें। साकिब लतीफ खान ने भी ज्वाइन किया। साकिब, आप पहले आते रहे क्लास में? सर मैं कर लूं? जी जी, आपकी। सर आ का मतलब क्या? लम नहीं, यातीकुम अरे, तुम्हारे पास आया, तुम सबके पास आया। जी ये नबा खबर। कौन बता रही है तर्जमा? जी सर। इमरान, आप नहीं, सॉरी, कौन बात कर रहा है, कौन बता रहा जी सर इमरान। है? जी जी, इमरान जी, बोलिए। आप, अलम। ये हो चुका है इमरान, ये आयत हो चुकी है। अब हमने इस आयत को देखा। हादा, और ये जिक्र, हादा जिक्र मन मन जो, जो माइया मेरे साथ, मेरे साथ, व जिक्र, और जिक्र जी मन जो कबली मुझसे पहले। मुझसे पहले। बहुत, ये जिक्र है या नसीहत, हम यहाँ पर कहेंगे ये नसीहत है उसके ये लिए जो याद। मेरे साथ है, और ये नसीहत है उसके लिए, या ये जिक्र भी हो सकता है यहाँ पर, जो मेरे से पहले है। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम क़रऊ किताबिया, इसका तर्जुमा करेंगी हमारे पास, चलें मुनीबा, आप ट्राई करेंगी। इज्जा, सर आप ट्राई ये जो करेंगी। जी जी कीजिए, बोलिए। सर ये इसमें जमीनी मतलब दाएं, तो ये पूरे वाले का जी क्या जी मीनिंग जी होगा? जी जी, मैं आप बाकी आपको अल्फाज तर्जुमा मैं कर देता हूँ। फअम्मा, बस जो, मन ऊतिया, जिसको दी गई या दी जाएगी, किताबहू, किताबहू के पहले आप तर्जुमा करें, बहुत आसान है। किताबहू, किताबहू हमने पढ़ा है, उसकी किताब। उसकी किताब। बी यमीनी ही, बी का मतलब आप, मैं आपको बताता हूँ, साथ है। अब आप यमीनी ही का मतलब कीजिए। दाएं, और ही मतलब हाँ, उसके। यमीनी ही, हाँ। हु के बजाय ही हो गया ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। यमीनी ही, यमीनी हिम,
यमीनिकी यमीनिकुम, यमीनिका यमीनिकुम हो सकता है ना। जी यमीनुहु का उसके मतलब क्या दाएं। होगा? उसके दाएं, उसके दाएं से, उसके दाएं हाथ में। दाएं से मुराद यहाँ पर क्या, दाएं हाथ में या दाएं तरफ से कह लें। फयकूलु, वो कहेगा हा उम, आओ आओ, इक़राऊ, पढ़ो, किताबिया, मेरी किताब। किताबिया असल में किताबी है, थोड़ा सा इसमें अल्फाज हो, ठीक है जी। और ये देखिए इसके जो अगली आयत है, ये भी इसका बिल्कुल एक, आप कह सकते हैं सेकंड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट है। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, और वो कि जिसको दी जाएगी उसकी किताब कहाँ पे, उसके शिमाली को क्या बाएं होगा, जाने। नहीं नहीं, दाएं तो यमीन था ना, शिमाल दाएं। उसके उल्टा। बाएं बाएं। बाएं, उसकी बाएं तरफ से। फयकूल या लैतनी लम ऊता किताबिया, बस वो कहेगा कि हाय काश, या हाय मेरी बर्बादी, ना दी गई होती मुझे मेरी किताब। और ये आप समझ सकते हैं कि ये किसका जिक्र हो रहा है, ये कौन सा मंजर है जो अल्लाह ताला ने सूरतुल हाक़ा के अंदर खींचा है। ये मंजर है जी मैदान हशर का। और इसमें जिन लोगों को दाने हाथ में, और किताब से मुराद यहाँ पर क्या है, नामा आमाल। अमाल। अमाल। नामा ये नामा अमाल है जो मेरा आपका हर एक का तैयार किया जा रहा है हर वक्त जब तक हमारी जिंदगी है। और हमारे दाएं और बाएं दो फरिश्ते बैठे हैं, इनको क्या कहते हैं, किरामन कातिबीन, जो नेकियां, दाएं तरफ वाला नेकियां लिख रहा है और बाएं तरफ वाला बदियां लिख रहा है। और एक एक चीज जो है वो नोट हो रही है, या यूं कह लें कि रिकॉर्ड हो रही है। और वो ऐसी जबरदस्त रिकॉर्डिंग है कि वो दुनिया के किसी इक्विपमेंट से हम उसको मैच नहीं कर सकते। और ऐसी जबरदस्त रिकॉर्डिंग है कि कोई चीज उसमें से मिस नहीं होगी। यानी कि ये नामा अमाल जिसके बारे में जिक्र आता है कि जब ये पेश किया जाएगा तो मुजरिमीन कहेंगे या वैलतना माली हादिल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है जिसने ना किसी बड़ी बात को छोड़ा है ना किसी छोटी बात को, बस वो इसके अंदर मौजूद है। और जर्रे के बराबर भी कोई नेकी करेगा तो उसको देख लेगा, जर्रे के बराबर भी कोई शर करेगा तो उसको देख लेगा। ये मंजर जो अल्लाह ने खींचा है, ये हमारे लिए खींचा है कि हम इसको इमेजिन करें और तसव्वुर करें कि क़यामत वाले दिन क्या जो है वो हाल होगा। दाने हाथ में अगर हमारा नाम माल में मिल जाए, हमें इसके लिए कोशिश करनी है। और कैसे वो शख्स जब नारा लगाएगा, जैसे एक शख्स जो है वो याहू करके नारा लगाता है, और वो कहेगा कि आके देखो मेरा नामाल मामे माल पढ़ो कि इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, कि मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब होना है। और मैंने उसके मुताबिक जो है वो फिर सारी तैयारी की। और अल्लाह भी उससे कहेंगे कि जिस तरह तुमने अय्यामिल खालिया में जैसे जिंदगी गुजारी, जिंदगी के जो अय्याम दुनिया में तुम्हें मिले थे, अब उसके मुताबिक तुम खाओ पियो और जो है वो ऐश करो। और उसके बरक्स उल्टे हाथ में अगर बाने हाथ वालों से हम हो गए माज़अल्लाह, तो फिर बहुत ही हसरत और नाकामी और अफसोस होगा। लेकिन वहां पर रोना काम भी नहीं आएगा। हदीस में आता है इसका मफ़हूम है कि रो रो के इतना आंसू बहाएंगे लोग कि उसमें सफीने चल जाएं। लेकिन वो रोना जो है वो किसी काम का नहीं होगा, वो चीखना चिल्लाना, वहां पर फिर जो है वो बचा नहीं सकेगा हमें कोई। इसलिए हम अभी फिक्र कर लें। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अक्लमंद कौन है, आपने फरमाया अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और जो मौत के बाद आने वाला है उसके लिए अमल करे। यानी अभी हमें ये चांस है हमारे पास कि हम मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए कोशिश करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया को बनाने की हम कोशिश करें। और बल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह, उसके बरक्स बेवकूफ और अहमक वो है जो अपने नफ्स की और ख्वाहिशात नफ्स की तबाह करे और बस उन पे पीछे चले, और फिर अल्लाह से लंबी लंबी उम्मीदें बांधे कि हाँ अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम है। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये हमें उम्मीद होनी चाहिए जब हम आमाल करें और हमें पता है कि हम कामिल तरीके से वो आमाल नहीं कर सकते। जैसा अल्लाह की इबादत का हक है, जैसे अल्लाह की इताअत का हक है, हम वो हक अदा नहीं कर सकते। उसमें जो नक्स और कमी रह जाए उसके लिए हम अल्लाह से गुमान रखें कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह ताला बहुत कदरदान है, अल्लाह ताला मेरे इस टूटे फूटे अमल को कबूल कर लेंगे और मुझे बख्श देंगे। तो ये रिमाइंडर है हमारे लिए। कुरान करीम में जगह जगह रिमाइंडर्स हैं, रिमाइंडर से भरा हुआ है कुरान। आज के इस वक्त में हमने जो इजाफी अल्फाज सीखे हैं, जो आपने कुछ अभी एक उसकी शक्ल में भी देखे, इमेज की शक्ल में, अल अर्दु जमीन है, आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल कुरान करीम में। अस्समाउ अस्समावात आसमान, अल जबल पहाड़ 39 मरतबा, अल बहरु, अल अनआमु, अशजर या अशजरतु, आईना कहाँ, और बाब या अब्बाब भी 27 मरतबा इसमें आया है। टोटल 947 वर्ड्स ये बनते हैं। तो 12 से 13 वो जो हमारे सबक के थे और इजाफी ये, तो तकरीबन हमने 2000 प्लस अल्फाज हमने आज के सबक में कवर कर लिए हैं।
इसमें एक शायद इसमें जी जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम मैं सलाम। अटेंडेंस ले अटेंडेंस लूँ? मार्क करने चाह रही हैं? जी ठीक है जी, आप अटेंडेंस मार्क करें। थैंक यू सर। गर्ल्स प्लीज आप अपने नाम सुन लें और अपने टर्न पे ही प्लीज बोलिएगा। उनीबा, बदर, हादिया, Present, please. आमना रहमान, आयशा, उज़मा शहबाज,